so very much. इन्हीं के साथ साथ we would like to acknowledge our partners as well. Yes. And now, ladies and gentlemen, before anything else, we would like to give a token of appreciation, a boost of applause for them, please. Welcome. इन्हीं के साथ साथ, right there. अब मजा आया ना जरा तालियों का शोर. कि इसमें आपने पश्तो जो गाना डाला है उसकी क्या कहानी है पीछे और क्या होगा. मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा मेरी फिल्म में जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, हमेशा जरा पंजाब सेंट्रिक होती है. वो हम एक कल्चर अपने मुल्क को, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है फिल्म देखने की. जी. अच्छा, इस बार ये बड़ी कंटेम्प्रेरी फिल्म थी. हमने एक तो सोच समझ के मायरा को पश्तो मतलब पठान दिखाया. Right now my swag is not that great. Sorry, I just took some glue to put my nail on and it. तेरे दोनों. Are you feeling okay? Mike. No. Wonderful. भाई सबसे पहले तो ये बात है, एक तो वो तो Last time I had a character name which meant wisdom was. Can you any guesses? Ooh, that's the question for the audience. Any clues? The last time I played a character, जिसका मतलब Wisdom. Oh. Come on, I mean, I'm sure they can hear me. They can give a round of applause for that also. So, what was I listening to? Yes. The headphones were not connected to anything. This was a very last minute thing. It's on. Yeah. I got the headphones from, who did I get it from? One of the cameramen. उससे headphones लिया. ये जो outfit मैंने पहना हुआ है, हमारे पास outfit नहीं था. So ये मेरी entry थी. तो I was like, नहीं यार, it has to be something, you know, cool. Yeah. हम भागे. प्राइमार्क गए और वहाँ एक काला ड्रेस, स्टॉकिंग्स और बूट्स. भागते पहने अपने. And then I was like, but she has to have a bag, you know. So Humayun's wife was there, and I was like, can I have your bag? So even though the entire film has been styled beautifully by Varda, but this specific scene, we did it like, you know, very quickly. But by that time I knew exactly who Sophia is. Yes. So I knew what to do with it. So the headphones were not connected. Right. But Nadeem was playing the main song. Love. Yeah. That is fantastic. You know, interesting. See it. Yes? She will change. She will change. दिल जाएगी. और वो अभी नहीं बदलती. माहिरा? He just took, don't stole my answer. I said this last time when someone asked me. Yeah, I said, yeah. मैंने कहा he will change. Yeah. तो फिर हुमायूं ने मुझे देखा कि भाई मैं क्या बोलूं. मैंने कहा बोल दे she will change. So that's a very good. Nobody changes, whether it's a man or a woman. And I think आपने हमें वो एक खुशखबरी दी. तो माया, I want to ask you this question. Okay, जब आप पहली दफा प्रोफेशनली बैठे और आपने बातचीत की, what is that one moment you felt that, oh my God, this is happening? How did you feel at that time? right. Not because of somebody. You can't force anybody to change. Absolutely. So I think that's not a good advice. Right, I agree. Okay, so ये तो worst advice होगी ना कि मतलब अगला इंसान बदल जाएगा, क्योंकि आप दोनों बैठे हुए. Love Guru is releasing inshallah at Eid al-Adha. Everyone's excited about it. Which has been hands down the best advice that you have given someone for relationships? That's what I want to know. हुमायूं, ये तो आपसे स्टार्ट करेंगे. क्या बताएं माहिरा ने आपको कौन सी अच्छी एडवाइस दी? ओके, तो यार माहिरा क्या बात है, जबरदस्त piece of advice. आप बदल जाएं. चल. आप खुद में चेंज लाएं. यही एडवाइस करती ना. आप बदल जाएं. आज भी सुबह यही कहा. इतनी सारी चीजें नहीं बता. अच्छा ठीक है. ये डोमेस्टिक इश्यूज अभी भी चल रहे हैं यानी के, है ना? Yeah. Would you like to say something? Just advised him today.
Oh, okay. And what advice did he give you actually? क्योंकि काफी अरसे के बाद आपने पहली दफा असल में प्रोफेशनली ये काम सवाल किया। हमसे कोई काम डेलिस, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, हर जगह से जहाँ से भी होते हुए आ रहे हैं, ये सवाल हर जगह पूछा गया है, लेकिन हमने हर जगह एक ही जवाब नहीं दिया। हर जगह कोई अलग अलग बात करते थे। ये तो कहते थे कि हाँ बहुत अच्छा लगा, ये लगा, सब उसको अलग तरीके से। अब क्या करें, आप बताएं। इन्होंने नया जवाब। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई, आपकी इंटरव्यू से पिक की मैंने, ठीक है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप दोनों ने की थी। माहिरा ने बोला था कि 10 साल पहले जब उन्होंने पहली दफा काम किया आपके साथ, वो छोटी थी और ये बड़े थे, और उसके बाद उन्होंने ये बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी हो गई हैं और आप छोटे होते जा रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, जरा इसके ऊपर रोशनी डालें। ऐसा तो नहीं है, ये अब भी छोटी हैं जी, और प्यारी हैं जैसे पहले थी, और इंसान तब भी अच्छी थी और अब भी पहले से बेहतर इंसान है। absolutely, of course, yes. Yeah, she was giving her the look, giving him the look for sure. Okay, अब ये बताइए कि असल में तो ये सवाल काफी लोगों ने आपसे पूछा था, मगर दुबई में जितने भी हमारे साथी हो जानना चाहते हैं, who is the real love guru in real life, जिसकी वाकई आप एडवाइस ले सकते हैं for sure relationships के मामले में। I mean, again, you're asking to choose between me and Humayun. Yeah, exactly. नहीं, वैसे भी Tough competition. कभी भी कुछ मेरे साथ मसला हो, मैं तुमसे एडवाइस लूंगा। Advice है. नहीं, एडवाइस ये अब हम लोग सॉरी डोमेस्टिक इश्यूज पे आ गए हम दोनों की। एडवाइस मैं दूंगी और हमेशा दूंगी, लेकिन आप सुनेंगे मेरी बात, कसम खाएं सबके सामने। ये जी वादा कर लिया इन्होंने दुबई में, पक्का वादा। अच्छा ये बताएं, which has been honestly I think you don't have to, you don't fall in love just once, according to me. You can fall in love. अच्छा, you agree? बहुत जोर से agree. How many times have you fallen in love? But I do have to say, no one love is the same. You fall in love again, but it's just not the same. So every love that you've had, I think, it's a story of its own. So yes, I do believe you can fall in love again. I don't think you will ask the same question to Humayun. No. right? Okay, so you're an avid radio listener as well. Okay, even your husband is on the radio. He plays a lot of DJ sets as well. I was from that station back home. Yes, and I came here and I joined YBFM 105.4. So the question is that if both of your characters in the film had their own shows on the radio, what kind of music would they play? What kind of shows would they do here in Dubai? Me or the character? The The character. characters for Love Guru. Oh, right. Okay. So Sophia would probably play a lot of like 90s music. Hmm. She would play a lot of 90s music, I feel. 90s music. Yeah. She was a 90s kind of a girl. Yeah, Nice. yeah, We yeah. like the nostalgia. Yeah. हुमायूं, आप क्या play करेंगे? 80s. यानी कि classic rock या वो original मौला जट वाला music. ये नजर है क्या बात है, क्या बात। Thank you so much, ladies and gentlemen. Please give it up for the fantastic, super. देखिए, बिनरोई का प्रोसेस जितना लंबा था ना, हम दोनों ने, क्योंकि पहली बार साथ काम कर रहे थे, पहली फिल्म थी साथ, यकीनन वो उसकी कहानी और जितनी वो इमोशनल थी, उसके अंदर इसके बनने में जितना टाइम गुजरा, बहुत वक्त हमारा साथ गुजरा, वो बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म थी। आप इसको लव गुरु के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो यकीनन हम दोनों के दिल के बहुत करीब थी। तो अच्छा, ये फिल्म फन फिल्म है, हमने बहुत फन किया। हम 1 महीने के लिए गए, उससे 1 महीने पहले या 2-3 महीने पहले हमारी बात हुई कि ये स्क्रिप्ट है, ये सॉन्ग्स होंगे, ऐसा होगा। मायरा को भी अच्छा लगा। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि 10 साल बाद मायरा ने साथ काम किया, उससे पहले हमें मौके मिले, हम साथ काम कर नहीं सके। मायरा को उससे पहले ये कॉमेडी फिल्म्स इतनी समझ नहीं आती थी,
ये भागती थी कॉमेडी से कि ये मैं कैसे करूंगी, और वो सही बात भी है। बहुत से लोग डरते हैं, मैं खुद बहुत डरता था पाकिस्तान किसी भी कॉमेडी फिल्म से करने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन मुझे फिल्में एंटरटेनिंग बनानी थी, तो मुझे 2-3 फिल्में करनी पड़ी, और आई थिंक मैंने वो सही डिसीजन किया था। यही हमने मायरा को भी समझाया कि अगर तुम करोगी तो तुम्हें गलत नहीं लगेगा, तो तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए। और आज मायरा हमारे साथ हैं और हमें बहुत मजा आया, एंड आई होप इनको भी मजा आया। एक छोटा सा क्वेश्चन और। वासे आपने देखा होगा, वो पॉलिटिकल छोटी छोटी ऐसे जोक्स रखता है फिल्म के अंदर, जो रिलेटेबल भी होते हैं, लोगों ने सुने भी होते हैं और लोगों को हंसी भी आती है। तो जवानी पर निहानी में भी काफी जगहों पे ऐसी चीजें रखता है, तो गुड है, मस्ती है, मजाक है, और कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थैंक यू। बताओ ना भाई, एक ना एक दिन तो आपको, जितने आप अपने आप को गुरु समझते हैं ना, कोई गुरु बनता नहीं है, सच्ची बात है। जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो फिर पता चलता है, सारी गुरुपन जो है ना हार्ड में चले जाते हैं, प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो मेरा भी गुरु का प्रोग्राम बढ़ गया। जी मायरा, आपसे क्वेश्चन है, आप अगर बताती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने शाहरुख के साथ काम किया और बॉलीवुड का बहुत एक्सपीरियंस जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से भी होता है, एक्टिंग के हवाले से भी। और क्या इसकी मैंने देखा, ट्रेलर देखा, इसका बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो हमने ट्रेलर देखा है, उसका सारा जितना भी है वो यूके और दुबई में इस तरह शूट हुआ है। तो अब हमारी जो क्वालिटी प्रोडक्शन की है वो बेहतर हो चुकी, तो क्या इस पे आप कहना चाहती हैं? वो तो बड़ी पुरानी बात थी, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपने लेजेंड ऑफ मौला जट में काम किया है, उस जैसी तो प्रोडक्शन फिर हमने देखी ही नहीं। अब पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इनफैक्ट इट वाज एट द लेवल ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है वेदर इट्स द लेजेंड ऑफ मौला जट और लव गुरु, और इवन फिल्म्स लाइक whether it's indie films like Joyland, content-wise and production-wise, we are just getting better and better. So, comparison तो कर सकते हैं, लेकिन I think कि जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे, इसके विजुअल्स देखेंगे, होपफुली इसकी साउंड देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात आपसे, Okay, I think this was more like a comment, so we'll quickly take 2 more questions because we. Hi, this is Movina from Pradesh News. Hi. First of all, I've grown up seeing you guys and I adore your work a lot. So I wanted to ask, what was the most challenging scene in this movie? What should we look up to on 6th of June? Definitely we are going to go and watch. इसका जवाब दूं मैं? जब हम लंदन में शूटिंग करने गए थे तो मायरा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और हमें ऐसे लगने लग गया था कि खुदा न खास्ता शूटिंग शायद हो सके। लेकिन ये ठीक हो गई 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। लेकिन सही तरह, ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जितनी भी शूटिंग करवाई वो बहुत मुश्किल है इनके लिए काम करना, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। और आप यकीन करें, वो लंदन में जाके वैसे भी शूटिंग करा, चैलेंजिंग थी, 3 घंटे दूर हमें जाना पड़ता था। और मैं किसी एक सीन की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे सीन थे, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और उसमें शूट करवाना एक नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल बात थी। लेकिन इसकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी इसने कहा कि मुझे काम खत्म करना है, मैं कहूँगी, अगर इसने रिस्क लिया अपनी तबीयत को मज़ीद खराब करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आखिरी दिन है मुझे। We also have a question from Khalid